Namaskar and welcome to the Worldview through Bharat's Lens. I'm your host Vanya. In a world driven by power and politics, Bharat stands apart. Bharat, a civilization that has led not just by might but by meaning. Today, we explore the deeper lens, the spiritual, cultural, and the civilizational one that defines Bharat's place in the world. Joining me is Professor Ravi Kedhar, a revered academic voice and a spiritual guide who brings both intellect and insight to this conversation. A very warm welcome to you, sir. It's a pleasure to have you on this show. Thank you for inviting me over here. I'm all excited to interact with you over the issue. Professor, India today stands as one of the most influential voices on the global stage, from diplomacy to development models. Yet, what makes Bharat's rise distinct is its civilizational depth. How do you see India's ancient ethos guiding its modern growth story? Beautiful. You have hit the nail on the head. Because most people, when they talk of nations, they talk of nations through the prism of political analytics or geographical analytics. But when it comes to analyzing a nation like India, rather Bharat, I would prefer the word Bharat over here, you are not talking of a geographical place. Yes. You are not talking of a political entity, because the concept of nation is only as old as the modern project of modernity or the modern Enlightenment era. Before that, there was no concept of nation as political scientists would have us believe. Then what is this entity called Bharat? The moment we try to understand this entity called Bharat, we come close to what you said, the civilizational depth of India. Yes. And what is Bharat? Bharat has two parts. If we do Sandhi Vichhed of Bharat, we parse the word, we have Bha and Rat. Bha is Prakash, Bhaskar, Bhanu, Prakash. Rat is delight. So, what is Bharat? Bharat is that place where people delight in the illumination of truth consciousness. Now, this brings me to my next reply, and that is it really a place? A specific place? No. It is more of a consciousness than a place. The place is only a second order reality, a representation of that consciousness. So, what we mean by Bharat is anywhere where people delight in knowing truth, in the enquiry of truth, and manifesting that truth and working according to that truth, what is called the rhythm, that place is Bharat. So, when you talk in terms of such frameworks, cognitive frameworks, then you cannot circumscribe any land with certain boundaries that this is Bharat. So, Bharat is as Vishal, as Virat as this world is, and As its name. so this is what gives the civilizational depth to a country like India, because from where do these concepts flow? From where do these ideas come? They are not as old as the Renaissance. They date back to the time when the West was barbaric, when the West, the whole world was in the grip of barbarism, and there was the dark ages in Europe and the rest of the world. America had not even been discovered. It is
more than 3,500 years ago that you have the first coherent abhivyakti of these universal principles of life in Rig Veda, in the Vedas. This is the core, the civilizational core of a nation like Bharat. ब्यूटिफुली सेड सर. आपने अभी कहा कि भारत की कोई बाउंड्री नहीं हो सकती, कोई Right? सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं. ये सीमा रहित है. इसको पॉलिटिकल पैराडाइम में नहीं डाला जा सकता. ये पॉलिटिकल साइंस वाले, क्योंकि इंडिया में, भारत में जो हमारी शब्दावली भी है, इडियम है जिसको हम यूज करते हैं, वो इडियम ही अलग किस्म का, अलग पैराडाइम का है. भारत इज एज वास्ट एज द वर्ल्ड इज. जहां जहां पे लोग प्रकाश, क्योंकि हमारा मूल मंत्र क्या है इस देश में, क्या रहा है? तमसो मां ज्योतिर्गमय. कि तम से, हे प्रभु हमें कहां लेके जा? प्रकाश में ले जा. ज्योतिर्गमया, गमया लेके जाना, मुझे अंधकार से प्रकाश में लेकर. ये प्रकाश कहां से आ रहा है? ये प्रकाश आपके अंतर से आ रहा है. आपके अंतर में आप जिसका अभिव्यक्ति हो, शक्ति की अभिव्यक्ति हो, उस शक्ति के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक उस शक्ति का अभिव्यक्ति फोर्स है, जो पावर है विच इफेक्ट्स चेंज, जो चेंज लेकर आती है अपने बल से, अपने वेग से. और दूसरा उसका प्रकाश है. एक तरफ अग्नि है, एक दूसरी तरफ सूर्य है. सूर्य जब सवेरे उषा काल में निकलता है, बाहर होराइजन पे आता है, सब कुछ प्रकाश जब फैलता है, मुझे संसार दिखता है, नहीं तो संसार अंधकार में डूबा हुआ है. तो ये है इस देश की महिमा. इस देश में जो ऋषि मुनि more than 3,500 years ago, dating is very difficult. Yes. कि ये किस समय एक्चुअली एग्जैक्टली, इसके ऊपर मतभेद है लोगों के कि एग्जैक्टली ये वेदों की रचना किस समय हुई. क्या ये सिंधु घाटी की सभ्यता की उपज थी, कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता जब विध्वंस हुआ उसका, और उसके बाद आर्य आगे बढ़े, जो कि एक एरियन इन्वेशन थ्योरी, हमारे जो आक्रांता हुए, जो कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने पैदा की, क्रिएट की अपने आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए. तो जब तक हम उस मूल सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हम भारत को समझ नहीं सकते. तो ये भारत जो है ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, पॉलिटिकल टेरिटरी भी नहीं है, ये सिविलाइजेशनल एंटिटी है. With no boundaries. With no boundaries. ये अनंत है. So I think you just pointed out a new definition of Bharat. Bharat is a civilizational entity with no boundaries. Yes. Beautifully said, sir. Moving on to the next question, sir. When nations around the world define progress purely through economic or military metrics, Bharat often adds a moral and human dimension to its vision. What do you think gives India, Bharat, this unique lens of balance between material progress and inner growth? Beautiful question, but let me modify it. As you wish, sir. प्रॉब्लम हमारे इस देश में जो है ना, हमारी जो सारी सोच है, उसका जो पैराडाइम क्रिएट किया गया, वो वेस्ट में ने क्रिएट किया, जिसके कारण हम बाइनरीज के रूप में विवेचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं. और वो बाइनरी, जैसे आपने अपने प्रश्न में वो बाइनरी डाली, वो क्या बाइनरी थी? इनर प्रोग्रेस और मटेरियल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअलिटी
वर्सेस मटेरियल रियलिटी, साइंस वर्सेस रिलीजन। ये बाइनरीज जन्म लेती हैं एक खास सोच में से, और वो सोच जो है वो आइडिएशनल है, वो मेंटल है, जिसका कोई एंकर नहीं है, जिसका कोई सूत्रधार नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो सोच है वो रूटेड है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। मगर मैं जब फिजिक्स की बात करता हूं, वो कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, कौन सी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात नहीं मैं कर रहा। द फंडामेंटल्स, मैं क्लासिकल फिजिक्स के फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा। मैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स की बात करता हूं। और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स बिल्कुल भिन्न हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने संसार को एनालाइज करके उसको विभाजित किया पार्ट्स में समझने के लिए, क्योंकि इंसान में जो मस्तिष्क प्रभु ने दिया है या प्रकृति ने उपजाया, इस मस्तिष्क का बेसिक जो सिद्धांत स्वभाव है वो तब तक सत्य को समझ नहीं सकता जब तक वो सत्य को विभाजित न करे। इसी को एनालिसिस कहते हैं, एनालिटिकल कैपेबिलिटी कहते हैं। तो हमने हर चीज को विभाजित किया और ये विभाजन की पद्धति जो है, मेथोडोलॉजी जो है, जिसके अंतर्गत हमने सत्य को समझने का प्रयास किया, इसने जन्म दिया इन बाइनरीज को, साइंस वर्सेस रिलीजन, मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, वर्सेस रिलीजन, मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। बाउंड्रीज को, इन सब बाइनरीज को वो क्या कहती है? एक एक्सपेरिमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स में। एक फोटॉन लिया गया, उसके दो भाग किए गए और दोनों को दो ऑप्टिकल फाइबर्स के बीच में से शूट किया गया, छोड़ दिया गया। एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो फोटॉन था उसको उन्होंने उसके साथ प्ले किया, उसने जो रिस्पॉन्स दिया, अब ये अचंभे की बात आती है, दूसरा उसका जो आधा भाग था वो दूसरे ऑप्टिकल फाइबर में है। अब इसको तो पता नहीं, इसके साथ तो कुछ नहीं किया हमने, छेड़छाड़ कुछ नहीं की, मगर देखा गया कि ये फोटॉन जो आधा भाग है, जो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, वही दूसरा भाग भी दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जब हमने छेड़छाड़ की और इसने जो रिस्पॉन्स दिया, ये कम्युनिकेट हो रहा है, कर रहा है इसके साथ, अपने दूसरे भाग के साथ, और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उन्होंने एटॉमिक क्लॉक यूज की। एटॉमिक क्लॉक से उन्होंने देखने की चेष्टा की कि क्या टाइम का गैप आ रहा है जब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर टाइम लैग है तो इसका मतलब इसको इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, इससे ये इसको कम्युनिकेट कर रहा है। मगर अचंभे की बात ये थी, टाइम लैग 0 था, एटॉमिक क्लॉक ने दिया टाइम लैग 0, मतलब सिमल्टेनियसली दोनों ने इकट्ठे रिस्पॉन्स दिया। मतलब ये दो कभी हुए ही नहीं, ये एक ही रहे। विभाजित मटेरियल लेवल पे हुए, मगर एनर्जी लेवल पे, बेसिक कहीं पे जो क्विंटेसेंशियल लेवल है, वहां पे ये फिर भी एक ही रहे, इसीलिए एज वन रिस्पॉन्ड किया। वैसे एक और एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। उसमें भी ऐसे ही देखा गया कि एक फोटॉन भेजा गया, दो
उसमें स्लिट्स थे, ओपनिंग्स थे, होल्स थे, सुराख थे, वो दोनों में से इकट्ठे गया, एक ही बन के गया और एक ही निकला। अब जब ऑब्जर्वर आया, ऑब्जर्वर ने जब इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि ये फोटोन कैसे बिहेव करता है जब सामने दो स्लिट्स हैं, तो वो दो में विभाजित हुआ ऑब्जर्वर के आने पे, नहीं तो वो एक बन के ही एज अ वेव गया था। अब ये विभाजित होके दोनों में से स्लिट्स में से अलग अलग निकला, अब जुड़े नहीं है। मतलब ये दो और एक, दो का एक और एक का दो होना, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ऑब्जर्वर के ऊपर। उन्होंने जब ऑब्जर्वर को अब अलग भी किया, मगर वो फिर भी एक नहीं हुए। मतलब आपकी चेतना आपकी दुनिया को का प्रारूप जो है वो डिसाइड कर रही है, आपकी चेतना। और ये ज्ञान हमारे ऋग्वेद में वेदों ने दिया। हमारा वेद कहता है कि ये सारा संसार, ये जो रियलिटी है, ये ओशियानिक है। ओशियानिक का अर्थ सिंधु है, और इसके 7 लेवल्स हैं, जिसको हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, एंटेंगलमेंट ऑफ वेरियस वेव्स। 7 प्लेन्स हैं, और हर प्लेन जो रियलिटी का है वो समंदर की भांति है। समंदर है, ओशन वेव्स का है, एनर्जी का है, और इसलिए संज्ञा आदि इसको वेद ने सप्त सिंधु, जो बाद में गानों में आ गया, मामा क्या चाचा पापा जल्दी आ जाना, 7 समंदर पार। ये 7 समंदर आए कहाँ से? हमारे फोकलोर में ये यहीं से आए। 7 समंदर पार, सप्त सिंधु, 7 सुर, ये सब 7 ही क्यों है? तो ये 7 प्लेन्स हैं, मगर हैं एक। ये क्वांटिटेटिव व्यू है। जब हम इंसान की जो मस्तिष्क की जो कैपेबिलिटी, स्वभाव है, वो क्वांटिफाई करता है, वो डिवाइड करता है, उसको नंबरिंग करता है। मगर जो चेतना है और सत्य है, सत्य जो है वो उसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई डिविजन नहीं है, वो एक है। But it changes how one observes it. ऑब्जर्वर की And observer चेतना का के perception. को ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी चेतना मानसिक चेतना है, और मानसिक चेतना चीज एक नहीं समझ सकती, वो विभाजित करके समझ सकती है। तो साइंस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में आपको करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग, फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप डिवाइड करते जाते हो। आपका बेसिक प्रवृत्ति जो आपके मस्तिष्क की है वो क्या है? डिवाइसिव। आप डिवाइड करते जाते हो हर चीज को, फिर उसके कैदी बन जाते हो। यू बिकम प्रिजनर्स ऑफ योर थॉट। वही इन्होंने मटेरियल और स्पिरिचुअल का एक नया तांता बुन दिया इस माइंड ने, मेंटल। वेद ये इसमें बिलीव ही नहीं करता। वेद कहता है जो मटेरियल है वो स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल है वो मटेरियल है। ये लेवल्स ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस हैं। ये सप्त सिंधु का खेल है। जो ग्रोसेस्ट फॉर्म है वो स्थूल है, वो पृथ्वी है, और जो फाइनेस्ट है वो क्या है? आकाश है, चिदाकाश, वासम शिव है। निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव क्या है? चेतना है। मगर क्योंकि मेरी चेतना जो है वो हर चीज को फिजिकल रूप में देखना चाहती है, तो मैं क्या करता हूं? उस चेतना का भी रूप बना देता हूं। गाता मैं बोलता हूं निराकार रूपम, सामने में शिव की मूर्ति बना देता हूं और शिव की फोटो बना देता हूं, उसको ह्यूमन फॉर्म देता हूं। इसी ने ये किया मटीरियल। तो इससे जो चीज निकलती है, हमारे यहां ये कहा गया, जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी भी समाज की होगी, और जो स्पिरिचुअल कोर से कनेक्टेड जब कोई समाज होगा, जब सत्य की चेतना किसी समाज में
ओतप्रोत हो जाएगी, तब उसका जो मस्तिष्क है, जिसको मारुत कहते हैं, जिसमें जो विचार होते हैं, उनका स्वामी मारुत है, और इंद्र जो विवेक का स्वामी है, वो सूर्य, सत्य के सूर्य के अधीन कर्म करेगा, उससे प्रकाश की किरणें, उसको विशन मिलेगी, और इंद्र उसके अनुसार डायरेक्शन देगा मारुत को, और मारुत जो विचारों की जो श्रृंखला है वो उससे कनेक्टेड होगी, तब वो समाज सत्य में आधारित होगा। और जब वो सत्य में आधारित होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने विचारों को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, उन विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका स्पिरिचुअल तो है ही, उसको भी ऑर्गेनाइज करेगा। उसको रितम कहा वेद ने। So this is the material progress through inner growth. Yes. So when there will be inner growth, there will be material growth. When there will be decline material, अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस में डिक्लाइन आ रहा है, इसका मतलब समझ लो ये सिम्टम है कि आप स्पिरिचुअल कोर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। स्पिरिचुअल कोर आपका रूट है जो पृथ्वी में है। जब कोई पौधा मुरझाने लगता है, पत्तों में प्रॉब्लम आती है, फल ठीक से नहीं लगता, इसका मतलब उसकी जड़ें जो हैं कमज़ोर पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसको जो खुराक मिलनी चाहिए थी, न्यूट्रिशन मिलनी थी, वो मिल नहीं रही। ये जो है ये जड़ है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी जड़ है। और मटेरियल जो दिख रहा है, जड़ तो दिखती नहीं। पेड़ की जड़ दिखती है क्या? नहीं दिखती। वो किसके नीचे है? पृथ्वी के अंदर, उसके गर्भ में समाधिस्थ है। मगर दिखता क्या है? ऊपर उसका तना दिखता है, उसके पत्ते दिखते हैं, उस फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं। मगर ये फलेगा फूलेगा कब? जब उसको सही खुराक मिलेगी नीचे से। तो स्पिरिचुअलिटी इज द कोर, इज द सोर्स, इज द रूट। मटेरियल प्रोग्रेस जो है वो उसकी अभिव्यक्ति है, पीस, ऑर्डर। और इसी को वेद ने धर्म का। So to basically conclude this, through spirituality हमारी इनर ग्रोथ होती है। हाँ, और जब भारत ने हमारी इनर ग्रोथ होती है, उससे ही हमारी मटेरियल प्रोग्रेस होती है एज ए नेशन। यस, हमारे यहाँ पे गलत धारणा आ गई। हमारे परिवारों में होता है, कोई बच्चा इस तरफ जाता है, अरे ये तो साधु बन जाएगा। अब गलत, ये मायावाद गलत आया हमारी संस्कृति में। इसने हमारी जो हीरोइकनेस थी, जो क्षत्रज था, जो क्षत्रियपन था हम में, उसको खत्म कर दिया। ये होलिस्टिक नहीं है, इंटेग्रल नहीं है, पूर्णता नहीं है इस ज्ञान में, ये अधूरा ज्ञान है। इंटेलेक्चुअलिटी इज नॉट इनफ, फिजिकलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिजिकल is the growth of the intellectual, intellectual is the growth of the spiritual. तो अगर हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में, मटेरियल डेवलपमेंट में कोई अड़चन आ रही है, तो समझ लो कहीं अड़चन कहाँ पे है? स्पिरिचुअल लेवल पे। वहाँ पे डिसोनेंस हो रही है, वहाँ रेजोनेंस खत्म हो रही है एनर्जी वेव्स में। तो ये हमारे वेद ने ये दर्शन दिया। इसीलिए भारत की भूमि में हमने ह्यूमन को भी गॉड माना, हर चीज को। पत्थर की भी पूजा की हमने, पेड़ की भी पूजा की। मगर जो चीज हम लोगों ने नहीं समझी वो ये, हम वहीं रुक गए कि जो ये बड़ का वृक्ष है ये अपने में भगवान है। नहीं, ये बड़ का वृक्ष क्या है? रूप है। तंत्र कहता है ये रूप है। ये रूप नहीं है, स्वरूप देखो इसका क्या है। इसका स्व, इसकी प्रेजेंस, इसके अंतर में जिससे ये निकला है, प्रस्फुटित हुआ है, वो जो प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस, वो जो आकाश है जिसमें से इसने जन्म लिया है, उस आकाश को जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है। वो उस व्यक्ति के अंतर में किसको देख रहा है?
सत्य के प्रकाश को, उस सूर्य को देख रहा है, तो इसलिए वो नमता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नमस्कार, नमः आकार। कौन से आकार को मैं नम रहा हूं? नारायण स्वरूपी आकार को मैं नमता हूं। न मैं नारायण स्वरूपी आकार, तो मैं आपको नहीं, एज अ फॉर्म को नहीं मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? वो जो सत्य आपके अंदर है, जो सूफीज ने भी बात की। नमस्ते का बेसिकली मीनिंग होता है आई बाउ टू द डिविनिटी इन यू, विद इन यू। तो हर चीज डिवाइन है। Yes. यहां कुछ भी प्रोफेन नहीं है, कुछ भी। हिंदी में प्रोफेन को क्या कहेंगे? जिस कुछ भी यहां पे, मतलब सब पवित्र है, अपवित्र कुछ भी नहीं है। अपवित्र तब होता है जब उसमें हम कोई डिस्टॉर्शन लाते हैं, और उसी से हमारा सारा आर्ट निकला। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए हम कहते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता थी। वो पराकाष्ठा थी, चरम सीमा थी हमारे सभ्यता की। हमारा वेद कहता है कि जो व्यक्ति इस सत्य को धारण करेगा वो आर्य बनेगा। और आर्य का अर्थ श्री अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने दिया। आर्य कोई रेस नहीं है, ना कोई भाषा है। आर्य वो जो उसको, उस ज्ञान को, उस चेतना को, ज्ञान को भी नहीं, चेतना को अपने में समावेश कर सकने की क्षमता रखता हो, दैट इज आर्यन। वो आर्य है। और वो ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है, उसका कर्म अकर्म है। और दूसरी बात, उसका कर्म ऐसा है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो इफेक्टिव एक्शन है। क्यों? क्योंकि वो नारायण की इच्छा है। इसलिए जब श्री कृष्ण अपनी उंगली उठाते हैं गोवर्धन पर्वत को, अपनी इस उंगली पे उठाते हैं, आम इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो चैतन्य नहीं है, उसमें वो दैवी चेतना, दिव्य चेतना नहीं। जब वो दिव्य चेतना इधर पे उन्होंने कर दिया फोकस, अब यहां पे सारी शक्ति है संसार की। अब इसके सामने वो सॉलिड जो है, जिसकी शक्ति अंदर ट्रैप्ड है, वो तो कुछ नहीं है। Sir, I think this entire thing calls for another episode. यस, दिस इज अ डिस्कोर्स। Yes. प्रॉब्लम हमारी ये है इस देश में, हम अपने जो ज्ञान की जो सरिता है उससे हमको वंचित रखा गया। मुझे 40 साल लग गए इसको डिकोड करने में। ये कहीं नहीं मिलता, किसी पुस्तक में नहीं मिलता। मगर हाँ, मेरे गुरु ने दी, श्री अरविंद ने और श्री माँ, मेरे गुरु हैं दो, उनके कारण ये मैंने प्राप्त किया। मेरे में कोई, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं करता विद एनी इंटेलेक्ट। मैं तो बुद्धू था, मुझे समझ ही नहीं कुछ आता था। मेरे में जो समझ है और जो मैं बोलता हूं वो वही बोलता है, मैं नहीं बोलता। क्योंकि अगर मैं अपने मस्तिष्क से, अपने मन से कुछ बोलूंगा तो शायद मैं कुछ ना बोल सकूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये कनेक्टिविटी करना तो इसलिए मटेरियल और स्पिरिचुअल को विभाजित करना सबसे बड़ी भूल है। एटलीस्ट हम लोगों को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धरोहर है वेदों की। Beautifully said, sir. Beautifully said. मगर हमने ना संस्कृत पढ़ी, ना वेदों की विवेचना की, ना उसको एक्सपीरियंस किया, ना अनुभूति की। इसके लिए स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, पंडित नहीं चाहिए, इसके लिए स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, इसके लिए मिस्टिक चाहिए, अनुभव चाहिए। पानी पीने के लिए मुझे केमिस्ट्री नहीं समझनी है इसकी,
कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, तब ये बनता है। उससे मेरी प्यास मिटेगी क्या ये जान के? नहीं। जब मैं ये पानी का गिलास पीऊंगा तो मुझे लगेगा हाँ, पानी क्या चीज है। अनुभव बहुत जरूरी है, उसको चेतना में उतारना है। ज्ञान जो है वो इंफॉर्मेशन है, वो खबर है, और चेतना क्या है? नजर है। In a world of increasing polarization, do you think Bharat's worldview, which is rooted in coexistence and Vasudhaiv Kutumbakam, can still offer a practical model for global harmony? Exactly, surely, beautiful. Here you have hit the nail on the head. So we're talking about Vasudhaiv Kutumbakam and coexistence. जैसे हमारे यहाँ पे G20 समिट हुई थी, उसका जो मेन थीम था that was Vasudhaiv Kutumbakam. हमारा यहाँ पे यही विश्वास है कि the entire world is family. What are your thoughts in it? Is it a practical model for the global world? It's not up to me to say whether it is practical or not, because that there is water in this glass is a truth which is irrespective of what I believe there is in the glass. I may say नहीं, पानी नहीं है, मगर will that deny the existence of water in the glass? No, sir. In the tumbler? No. सत्य को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं। वो इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अल्टीमेटली द ट्रूथ हैज टू प्रिवेल। और आपने बहुत सुंदर कहा कि इन अ वर्ल्ड विच इज रिवन, डिवाइडेड, पोलैरिटीज हो गई हैं, कोई कुछ, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है वसुदैव कुटुंबकम का, ये कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। It has to be felt in the pit of your heart. It has to be seen. इसलिए हमारे यहाँ पे फिलॉसफी वर्ड नहीं है। हमारे लिए वर्ड क्या है फिलॉसफी के लिए? दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। सत्य को देखा जाता है, और जो देखता है वो कवि है। सर, यहाँ पे हम भारत की तो बात कर सकते हैं कि ठीक है, भारत विश्वास करता है कुटुंबकम में, बट जब हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया तो नहीं करेगी, राइट? कोई बिलीव करे या ना करे, सत्य को, वही तो मैं कह रहा हूं, ट्रूथ कैन नॉट बी कॉन्ट्रोवर्टेड। How? I will tell you that. आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखते हो, समंदर में पानी है, इवेपोरेशन करके ऊपर गया, नीचे आया, वापस कहाँ पहुंचा? समंदर में। सब कुछ समंदर से निकला, समंदर में ही वापस समावेश उसका हो गया। कोई कहे नहीं ये तो चला गया आकाश में, कोई कहे नहीं ये तो बारिश से आया। ये सारे अधूरे सत्य हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात की जाती है। इंक्लूसिविटी कहाँ से आती है? जब दो विरोधाभास में कॉन्सेप्ट्स हों, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से निकलता है? पोलैरिटी कहाँ से आती है? थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस, वाद विवाद, थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस। थीसिस इज गुड, एंटीथीसिस इज इविल, थीसिस इज पॉजिटिव, विवाद इज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव निकलते कहां से? नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन में मध्य में क्या है? शून्य। और नंबर लाइन जब एक्सटेंड करती है
वो दोनों दिशाओं में एक्सटेंड करती है। पॉजिटिव अगर एक जाता है तो इधर भी -1 जाता है। ऐसा क्यों? मतलब एक, अगर मैं बहुत ही बचकाना बात करता हूं, अब एक अच्छा व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ तो उसके साथ ही एक बुरा व्यक्ति भी पैदा होगा। अच्छाई एक हुई, एक बुराई, इनका सम करो अब आप, एक अच्छाई और एक बुराई, क्या आएगा? ना अच्छाई ना बुराई, ये हमेशा शून्य रहता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जपजी साहिब में कहते हैं, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुई दुई इन टूज, दाई दाया, अपोजिट्स, खेल है सगल जगत। ये सारा संसार जो है ये प्ले है, इंटरप्ले है, किसका? अपोजिट फोर्सेस का। यही अपोजिट फोर्सेस गुड और इविल बनती हैं, कभी अपोजिंग आइडियोलॉजीज बनती हैं, अपोजिंग इंटरेस्ट बनते हैं। खेल है सकल जगत। ये निकलते उपजते कहां से हैं? एक और लाइन आती है गुरु ग्रंथ साहिब जी से, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले, आगे पता है आपको? नहीं सर। कौन भले कौन मंदे, एक ही नूर से सारा जग, ये संसार जन्म लिया, तो कौन भला है और कौन बुरा है? ये रिलेटिव है। जिससे मुझे लाभ पहुंचेगा उसको मैं कहूंगा गुड, और जिससे मुझे नुकसान होगा, हानि होगी, वो मेरे लिए ईवल। गीता जी में, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आई एम गुड, आई एम ईवल, बट साथ में कहते हैं, आई एम नाइदर गुड नॉर ईवल। तो ये जो अपोजिंग थॉट्स हैं, ये जो पोलैरिटी है जिसमें संसार बटा हुआ है, इसको हमने क्या करना है? स्पिरिचुअल कोर में जाके, वही इंटेलेक्चुअली नहीं, स्पिरिचुअल कोर में इनको ब्लेंड करना है, सिंथेसिस करना है। जब आप इसको सिंथेसिस करते हो, और वो किससे होता है? वो साधना से होता है। जब तक वो विशन नहीं होगी, वो जागृत नहीं होगी। इसके लिए एवोल्यूशन चाहिए। इसके लिए थ्योरी ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन दी श्री अरबिंदो ने कहा, नेचर इज इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये कला, ये पोलैरिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब तक रहेंगे जब तक मनुष्य किससे काम करेगा? बुद्धि से, मानसिक बुद्धि से, ब्रेन से। जब वो इस माइंड से ऊपर जड़ के जाएगा, इवॉल्व करेगा इंट्यूटिव माइंड को, और फर्दर आगे सुपरामेंटल, सुपर माइंड को इवॉल्व करेगा, उसमें जब उसकी चेतना स्थित होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये एक मैं ही ये भी हूं और मैं भी वो भी हूं। इसीलिए वेद में और वेदांत में भी, उपनिषदों में भी कहा गया है, द किलर is the killed, the eater is the eaten, the food I eat वो भी मैं ही हूं, और जो खाने वाला है वो भी मैं ही हूं। तो ये है क्या फिर? ये लीला है, ये खेल है। इसलिए लीला कहते हैं ना हमारे, हम ये भी सुनते हैं अपने फोकलोर में, जब रिलीजियस, everything and it's nothing at the same time. At the same time, everything is a part. That nothing is not absence. That nothing is no thingness. Thingness मतलब solids, जिसका आदि ये मस्तिष्क है। इसलिए जब बुद्ध ने अपनी यात्रा की, एनलाइटनमेंट की, तो उन्होंने सबसे पहला पड़ाव कहाँ डाला? शून्य में। और ये सिर्फ बुद्ध ने के केस में नहीं होता है, ये हर वो व्यक्ति जो अपनी प्रतिभाएं, अपनी जो विकसित करता है, अपनी हायर फैकल्टीज ऑफ माइंड जब विकसित आप करते हो, तो माइंड से जब आप सुपर माइंड की तरफ जाते हो, तो सबसे पहला पड़ाव ही शून्य का आता है।
जहां नेगेट हो जाता है सारा फॉर्म, खत्म हो जाता है, न भवती, कुछ नहीं वहां पे, नभ नभ न भवती, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन बीइंग, मगर बीइंग अंडरस्टूड एज फॉर्म, वहां पे फिर सिंक्रोनाइजेशन। और उसके लिए जाने के लिए यू नीड टू हैव इवॉल्व्ड बीइंग्स, उस चेतना के लिए, उस चेतना में हमें इस भारत को लेके जाना है, तब ये संभव है। और उस व्यक्ति के पास, जिसके पास ये चेतना होगी, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, नेचर भी उसके अधीन हो जाएगा। इसलिए जर्नी कहां से है? पहले अपने ऊपर मास्टरी। अभी आप कठपुतली हो दिमाग की, सेंसेस की, इसलिए वो दिखाया जाता है ना, वो हर कृष्ण मंदिर में आप देखोगे रथ दिखाया जाता है। उस रथ में अगर आप पिक्चर को देखोगे, श्री कृष्ण का जो चेहरा होता है वो शांत है, प्रकाशमय है। अर्जुन का लक्ष्य के ऊपर फिक्स्ड है, उसकी आंखों में वो जो भाव होता है वो लक्ष्य को भेदने का होता है, जिसको मुझे मारना है। और जो वो घोड़े होते हैं उनमें वाइटैलिटी होती है, वो एकदम से फ्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि वो दौड़ रहे हैं। मगर स्वामी कौन है? कर्म कौन करवा रहा है? श्री कृष्ण। अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है। इसलिए जब श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में, युद्ध स्थल में, अर्जुन एकदम से हो जाते हैं धराशायी, मानसिक तौर से कहते हैं, हे कृष्ण मैं कैसे इन लोगों को मारूं, ये तो अपने स्वजन है, कोई गुरु है, कोई पितामह है। वो कहते हैं ये तो अधर्म है। वो कहता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो बातें, मगर जिस प्रकार से कर रहे हो एक मूर्ख की तरह कर रहे हो। यू आर टॉकिंग वर्ड्स ऑफ विजडम बट यू आर टॉकिंग देम फूलिशली। क्योंकि श्री कृष्ण को और फिर वो दिखाते हैं कि तुम तो सिर्फ मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हो, इनकी मृत्यु मैंने कर चुका हूं, मैं ये मर चुके हैं, ये सिर्फ इस स्थूल जगत में इसका मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति होना है। तो तुम विलाप किस बात का कर रहे हो? और फिर विलाप भी किसका? ये सब तो मैं ही हूं। ये खेल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, युगा साइकिल चल रहा है। तो ये इस स्थान पे जब इंसान पहुंचेगा तो वो स्वराट हो जाता है, उस चेतना को जब प्राप्त करता है। जो स्वराट है वही सम्राट है, वो संसार का सम्राट है, वो स्वामी है संसार का। मगर स्वामी बनने हम क्या करते हैं? हम पहले सम्राट बनने का प्रयास करते हैं, डोमिनेशन करता है। जो कॉलोनियलिज्म, सारी हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म की देखें, कभी स्पेन, कभी नेदरलैंड्स, डच, कभी अंग्रेज, कभी फ्रांसीसी निकले हैं लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए। अपने आप को कंट्रोल किया। भुल्ले शाह कहता है, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल बनिया, कभी अपने आप नू पढ़िया नहीं। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल बनिया, कभी अपने आप नू पढ़िया नहीं। फिर अगली लाइन में कहते हैं, रोज तू शैतान से लड़ता है, मगर जो अंदर शैतान बैठा है उसको तूने कभी मारा नहीं। वड़वड़ जानदा मंदिर मसीती, कभी अपने अंदर गया वड़या नहीं। तो सबसे पहले इसको तो संभव है, मगर इंटेलेक्चुअली संभव नहीं है। Sir, if you could conclude this one answer So, in 2 lines, that one message to the youth. the message to the youth is, if you want to be strong, divinity is strength, number one. Divinity is not weak virtue. Virtue का मतलब ही strength है old English में. Divinity is strength, and if you want to be divine, you want to be strong,
then embrace the wisdom of our Bharatiya Culture. parampara. Parampara. So, as Bharat grows materially, it seems our spiritual and cultural compass still defines who we are. But what does that mean for the generations that will lead tomorrow? Respected sir, you work closely with young minds. Today's youth are ambitious, connected, and global, but often a little disconnected from their roots. At the same time, we know India has one of the youngest populations in the entire world. How do you think our youth can draw strength and clarity from Bharat's civilizational wisdom to shape a more self-assured and visionary India? First of all, I would like to say this is a great opportunity for India to reinvent itself and to get rid of the paradigms of thought that we inherited because of the colonial experience. But in a way, again, I would say, I am not one of those who cry over spilt milk. I see something good in coloniality also, because the colonial experience was a wake-up call that you have grown weak because you have disconnected yourself from the spiritual core. Now the time has come to rediscover that, and look at it. India has the youngest population. India is young. This is the time of renewal. This is the time of resurgence. But that is possible only if the youth of India embraces its heritage. Yes. Don't be dazzled by the razzmatazz of Western culture. The West is sinking ideationally and from the vision point of view. If West will survive, that too will depend on you. Because when India rises, it does so for the whole humanity. India is not a parochial civilization, because India talks, as you yourself said, of Vasudhaiva Kutumbakam. India believes in sharing. India believes in empathy. Why? Because India has the wisdom of the Vedas. And the Vedas say that all is one. Not just God. It's not just only God who is one. Bhagwan or Bhakt bhi ek. Atma and Paramatma. Ek. Ek. ये डिविशंस ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है. तो उस सभ्यता को, उस कल्चर ट्रेडिशन, उस हेरिटेज को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को, उसको अगर एम्ब्रेस करेंगे, भारत का भला तो होगा ही, मगर पूरे विश्व का, और सिर्फ विश्व का नहीं, इस सृष्टि का, क्योंकि ये सृष्टि उसी तरफ जा रही है. वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ युगा साइकिल वेयर कलयुग इज एंडिंग. कलयुग इज द एज ऑफ फॉल्सहुड, और फॉल्सहुड जब खत्म होता है तो कौन सी एज आती है? द एज ऑफ ट्रुथ. एंड व्हाट डू वी कॉल द एज ऑफ ट्रुथ? सतयुग. सो वी हैव टू अशर इट इन. सो द यूथ ऑफ इंडिया needs to interrogate. Do not be and also remember, ये सिर्फ उनको इसलिए नहीं करना है कि उनकी कोई ड्यूटी है towards India. It is a duty towards themselves. As D.S. Lawrence says, to thine own self be true. ओशो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो स्वार्थी है, ये स्वार्थी है. मैं कहता हूं अगर सारा संसार स्वार्थी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. क्यों? कहता स्वार्थी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि स्व का अर्थ किसने समझा? जिसने स्व का अर्थ समझा उसने तो सब कुछ समझ लिया. सो पे अटेंशन टू योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ. जिस दिन आप अपने आप को समझने लगोगे, यू विल स्टॉप सीइंग हॉबगॉब्लिन्स और नोम्स और enemies outside.
you will see that that enemy who is outside is only a reflection of the enemy inside your consciousness. When you, and that will help us. That will help this country. This is the divine plan. This is the plan of God. If you are with it, you will survive, you will flourish. Otherwise, nature has a plan B. And what does that plan B say? It's a bad thing from the mental point of view. Plan B means if you refuse the opportunity that is being given in the challenge of AI, in the challenge of biotechnology, in the challenge of the advances made by science, is an opportunity for the rediscovery of the self and the nation, its heritage. If we miss that opportunity, we make ourselves vulnerable. So we need to rediscover ourselves in order for ourselves to grow. जब हम खुद grow होंगे तो हमारे साथ के peers भी grow होंगे. This is something that we can consider a quality of the youth. हम peer. Everything is qualitative. Nothing is quantitative. Okay, sir. This world is used to quantitative logic. I think it's time now. It started getting used to qualitative logic. The world needs to understand there are no twos, there are no discreteness is a myth. इसी को माया कहा गया हमारे यहाँ पे. You understand what is discreteness? Discrete mathematics होता है, उसमें हम कहते हैं this is one mug, this is number 2. ये जो ये 1, 2, 3, 4 ये जो है ये myth है. There are no numbers, there are no divisions. These are only manifestations. These are रूप्स. ओशन में कई आइसबर्ग्स घूम रहे हैं. क्या वो अलग है? They are only One. crystallization of the water of the ocean. Yes. They are one. The day we realize it, that day we will move forward. और भारत के पास ये इंडिया, हमें we should be proud of the fact that we have taken birth in this country, जहाँ पे ये सारा ज्ञान की सरिता बही, उसको धारण करें, उसको धरें अपने अंदर, अपनी. और जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस, एज आई टोल्ड यू अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब आप अपनी चेतना का विकार खत्म कर देंगे, उसको मध्य में लाएंगे, शून्य चेतना में लाएंगे जहाँ शिव विराजमान है, ये सारा संसार जो है अपने आप शिवमय हो जाएगा. ये संसार जो है, ये इसमें जो ये सारे कार्यकलाप हैं, लड़ाइयाँ हैं, सौरो है, पेन है, ये सारा अंधकार है. उस अंधकार से जब आप निकलोगे, संसार अपने आप ठीक हो जाएगा. सो माई ओनली, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इन यूथ. ये ज्ञान जानो और उसको ग्रहण करो अपने में. ये आप सिर्फ यौवन में कर सकते हैं, यूथ में कर सकते हैं. जब आप युवक हैं, बूढ़ी हड्डियां नहीं कर सकती. आपने अपने शरीर को जिस दिन जर्जर कर दिया, बुढ़ापे में हमारे प्रॉब्लम क्या है, विडंबना इस देश में क्या है, हम इन सब प्रश्नों को कब सोचने लगते हैं? जब गेम ऑलरेडी अप है. This show has a certain theme, and spirituality is not. Spirituality is a part of that. Spirituality is the core of that. Yes, it is indeed core of that, but we're talking about soft power, and Okay. it is focused on youth. Yes. India's culture and how it's going to impact global politics. Yes. So youth of India, if it connects, because the vision is going to come from there. If they get that vision, then they will be able to marshal their ideas, their ideational resources, their intellectuality. They will be able to use artificial intelligence. They will be able to use biotechnology. They will be able to use nanotechnology, and
with all these technologies, they will be the masters of that technologies, not the slaves of the technology. And that is how they can build a new nation, a new world. There's a growing sense of confusion among young Indians, torn between Western aspirations and their Indian identity. Tell us, how can they strike a balance between global ambition and their rootedness in Bharat's cultural consciousness? I said earlier itself right at the beginning, भारत का अर्थ क्या है? तो अगर आप भारतीय बन गए तो क्या बने आप? You are a universalist. Why do I want to become a Western? Why do I want to westernize myself? I should think, I don't want to be a globalist. Globalism is coming under attack in the West itself. Globalization westernize नहीं करना है, universalize करना है. I have to pick up the best from the West and the best from the East. East में जो ये tendency of not questioning but swallowing the truth है, that has to go. West से अगर मुझे कुछ सीखना है, वो उनका अटायर नहीं सीखना है, उनकी शैली नहीं सीखनी है, वो गलत है सब. उनके भोजन खाने की पद्धति नहीं सीखनी है, तो फिर मुझे उधर से सीखना क्या है? द रेस्टलेस इनक्विजिटिव कैपेबिलिटी जिसने साइंस को जन्म दिया. साइंस इज द ग्रेटेस्ट बून दैट द वेस्ट गेव टू द वर्ल्ड. रेनेसां के बाद जो एनलाइटनमेंट की एज आई 18वीं सदी में, जिसका डायरेक्ट फॉल आउट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, जन्म हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसने संसार कितना बढ़िया बना दिया. द नेक्स्ट स्टेज इज इंटीग्रेटिंग दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इनर इंजीनियरिंग. So we know that science and spirituality are nothing but two sides of the same coin, right? तो अगर हमारे यहाँ भारत में spirituality है prominent, तो यहाँ पे साइंस भी तो जन्मा है, मगर हम भूल गए ना वो, क्योंकि कोर जो है, ये संसार जो है, ये सारा संसार जो है, ये एक स्पिनोजा की भाषा में, स्पिनोजा कहते हैं, ये संसार जो है वो एक रिपल्स है. वो समंदर में या किसी अगर लेक में आप जाते हो, पत्थर फेंकते हो पानी में, तो वहाँ पे क्या होता है? लहरें बनती है ना, सर्कुलर. अगर आप किसी तालाब में एक कंकर फेंकोगे, तो जहाँ पे वो कंकर हिट करेगा वो एपिसेंटर बनेगा, और उसके इर्द गिर्द क्या बनेंगी? वेव्स बनेंगी कंसेंट्रिक. एक छोटी वेव, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, वो धीरे धीरे डिसिपेट. समंदर में भी ऐसे ही लहरें पैदा होती हैं जब इक्लिप्सेस आते हैं, टाइड्स आते हैं, उसके कारण. वैसे ही ये संसार है, इसका जो सेंटर है वो स्पिरिचुअल कोर है, कॉन्शियस एनर्जी है. मध्य में क्या है? कॉन्शियस एनर्जी. वो कॉन्शियस एनर्जी धीरे धीरे एक्सपैंड करती है, सर्कुलर. वो आपके आइडिएशनल यूनिवर्स को जन्म देती है, आइडिएशनल इंडिविजुअल के आइडिएशनल, फिर सोशल, कल्चरल, मटेरियल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल. तो ये क्या है? वेव्स हैं. एक मध्य में है, बाकी उसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलिटी हैं. ये एक ही लेवल पे, ये प्लेन नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, 2 डायमेंशनल रियलिटी नहीं है. इस तरह से मैं इसको देखता हूँ. My next question to you, sir. In your experience with students across universities, what do you feel India's youth need to remember most about their heritage while stepping into a rapidly changing modern world? आज के समय में हम जानते हैं सर, टेक्नोलॉजी, AI, साइंस एंड यूथ का अपने कल्चर से ही थोड़ा डिस्टेंट होना, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं. What is your message to the youth? I would ask youth to become inquisitive. Don't accept anything. Don't swallow truths. Even if it is truth, don't swallow it. Interrogate it, question it, experiment with it. I'm saying so many things over here, and if the youth listens to me,
Don't swallow even this, what I am saying. There's a beautiful novel, very small novel by Hermann Hesse, titled Siddharth. I don't know if you have read it. In that, the story goes like this. Siddharth is the son of a king, and he goes out in search of truth. He has some experiences, as a result of which he gets existential questions. उसको लगता है कि ये सृष्टि है क्या, सत्य क्या, उसको झकझोर देता है। वो कुछ वृतांत उसके जीवन में होते हैं, जैसे बुद्ध के जीवन में हुए थे। तो वो निकलता है इनके प्रश्न ढूंढने के लिए, तो उसको 2-3 फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी उसके साथ सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिर सारनाथ में उनको बुद्ध मिल जाते हैं। बुद्ध ने सत्य को पाया है, जिया है, इसलिए उनकी वाणी में सत्य की गरमाइश है, हीट है, दैट फोर्स है, पावर है। वो वर्ड सुनते हैं, जो उनके मित्र होते हैं सिद्धार्थ के, वो कहते हैं हमें बुद्धा मिल गया, तो हमने सत्य पा लिया। वो वहीं रुक जाते हैं। सिद्धार्थ जो है वो कहता है बात तो सही कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे फील ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, ये जो बोल रहे हैं ये है क्या, ये क्या बात कर रहे हैं। सेटिस्फाइड नहीं। कहते हैं जब तक मैं अनुभव इसका नहीं करूंगा, तब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं बुद्ध को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के। दोस्त कहते हैं तुम मूर्ख हो, बुद्ध मिल गए, सारा ज्ञान मिल रहा है, क्यों फिर से भटक रहे हो। मगर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो शब्द सुने, उन शब्दों का मर्म तो मुझे पता ही नहीं चला। तो सिद्धार्थ आगे जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनके कई एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक मर्चेंट के पास भी रहते हैं, एक लेडी के पास रहते हैं, फिर अंततः जब सारे एक्सपीरियंसेस से फिर वैराग्य भाव होता है, वहां से निकलते हैं, फिर नदी के पास पहुंचते हैं। उस नदी को जब क्रॉस करते हैं और मल्लाह से बात करते हैं, उनको ज्ञान, एनलाइटनमेंट हो जाती है। सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। अब जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, उनको एनलाइटनमेंट, प्रकाशमय हो गया उनका मस्तिष्क, और वो स्पिरिचुअल कोर के साथ कनेक्ट हो गए। अब उनको सारा ज्ञान मिल गया जो बुद्ध का था, वो बोधिसत्वा हो गए। अब ये वापस सारनाथ से सोचते हैं कि मुझे तो मिल गया ज्ञान, चेतना भी प्राप्त हो गई, मेरे मित्र तो बुद्ध के पास थे, वो पता नहीं कहाँ पहुंचे, जरा देखो। सारनाथ आते हैं और वो क्या पाते हैं कि वो मित्र उनके वही हैं जहां थे। उन्होंने क्या प्राप्त किया? शब्द। वो स्कॉलस्टिसिज्म में चले गए, स्कॉलरशिप में चले गए, जो हमारे पंडितों ने काम किया। उन्होंने उसकी ग्रामर पढ़नी शुरू कर दी, कमेंट्रीज, भाष्य लिखने शुरू कर दिए, वो संस्कृत ग्रामेरियंस बन गए। मगर जो उसका मर्म था, जो स्पिरिट था, उसको छू नहीं पाए। तो ये करना जरूरी है। सुनो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ो, मगर पढ़ना और सुनना वो सिर्फ पहले आपकी ओरिएंटेशन के लिए जरूरी है। अंततः जब तक आपकी चेतना का रूपांतरण नहीं होगा, आप मानसिक चेतना से सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, तब तक आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। तो मेरा यूथ से यही कहना है, लर्न टू डिस्टिंग्विश between knowledge and consciousness. Knowledge is information, वो खबर है, और consciousness, चेतना क्या है? वो नजर है, दर्शन है। दर्शन को फिलॉसफी मत बनाओ। Beautifully said, Professor.
A youth rooted truly makes for a resilient nation. Exactly. And that brings us to how Bharat engages with the world, not as a follower, but as a thought leader. From yoga to Ayurveda, from diplomacy to disaster relief, Bharat's soft power has always spoken louder than its slogans. Soft power has become a buzzword today, but Bharat has practiced it for millennia through its philosophy, yoga, culture, and compassion. How can India reassert these strengths in a way that the world not only respects but learns from? Your view on this, Professor? India needs to institutionalize it. हमारे यहाँ पे कितने सेंटर्स हैं वैदिक लर्निंग के? कहीं नहीं दिखता आपको. आपको वैदिक लर्निंग के सेंटर्स कहाँ मिलेंगे? यूरोप में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे. यहाँ क्यों नहीं? जहाँ जननी है, जहाँ से ज्ञान निकला, जहाँ से ये सब कुछ निकला. Educational institutions need to be recast. The Gurukul concept needs to be embraced. Again, we need to reinvent ourselves. That is very important. अब इसमें जैसे ही हम ये बात करते हैं, देयर इज एक वर्ग है इंटेलेक्चुअल्स का इस देश में, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनकी जो शब्दावली है और उनकी जो सोच है वो वेस्ट से निर्धारित है. वो वेस्ट अपने आप खुद भी इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स आइडिएशन. दे कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. वेस्ट के बारे में टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में कहा, अंततः कहा कि ये तो वेस्टलैंड है, क्योंकि इट इज, यहां पे सारी जो इंक्वायरी कहां खत्म हो रही है? इन द डेजर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. तो वेस्ट मॉडल नहीं दे सकता आपको. यस, वेस्ट ने साइंस टेक्नोलॉजी लाया, बट दैट इज द लिमिट. इट स्टॉप्स देयर. यू नीड टू गो वन स्टेप फर्दर नाउ. सेंटर की तरफ जाना है, कोर की तरफ जाना है. पेरिफेरी पे मत रहिए, सर्कल की पेरिफेरी पे. वहां पे सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी है. सर्कल के एंड बाहर सर्कमफ्रेंस पे मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी है. मिनिमम इंस्टेबिलिटी कहां पे है? सर्कल के मध्य में, जहां पे उसका सेंटर है. वहां चेंज ही नहीं है, वहां नथिंग इज चेंजिंग. इट इज बियॉन्ड रेस्ट एंड मोशन, ट्रांसेंडेंटल है. तो उससे निकलिए. वो लोग जैसे ही हम ये बातें करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो वी आर सेटिंग द क्लॉक बैक. वी आर नॉट सेटिंग द क्लॉक बैक. We are rather advancing. We are coming out of the trap of past, present and future. We are going into the dimension of timelessness. We are speaking of the dimension of infinity, which contains space and time. Infinity, eternity. How can it be a turning back? And we are asking that our people should inherit this wisdom. तो इसके लिए हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंप्लीट रीइन्वेंशन करना पड़ेगा. You've often spoken about inner strength leading to national strength. In that sense, do you believe the character of a nation is a reflection of the consciousness of its people? Yeah, it is. Because what is a nation? A nation is so many souls taken together, so many people taken together. A We collective constitute identity. collective identity. So it is. So, but then it will depend on what is the quality of the people who are inhabiting that land. And as of now, when I look at it, our people are more concerned, they are bogged down with only what Maslow would say, the lowest of the low hierarchy of needs, satisfaction of the lowest of the low hierarchy of needs. That is survival or at the most economic, individualist. And
most people are not stepping out of their individual egos. We need to step out of our individual egos and become a member of the community. Community should become a part of the nation. So, we need to imbibe. Only when individuals imbibe a national consciousness can this happen. National strength through inner strength, and through inner strength we get our national strength. Now let's come on global geopolitics. Sir, हम जानते हैं कि आजकल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कितना ज़्यादा पावर सेंट्रिक बन रहा है, बट कैन इंडियाज धार्मिक एंड कल्चरल लेंस बी अ स्टेबलाइजिंग फोर्स नॉट जस्ट फॉर इटसेल्फ बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड एट लार्ज? वी आर ऑलरेडी डूइंग इट. मोदी जी को देखिए, कर रहे हैं वो. दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, Russia, former Soviet Union, America on the other side, never saw eye to eye. They still don't see eye to eye. And there are many flashpoints in the world, be it Ukraine, be it South China Sea, at different places where the power struggle is going on and the superpowers are locked in combat. If not hot war, but cold war is there and it is on the cusp of that. Russia के साथ जो problem चल रही है, we have been able to manage the contradictions within the global order. वो कैसे कर पाए हैं? Because here do we have a leader who is anchored in himself, who tilts neither right nor left, and he is not only self anchored, his self is aligned with the consciousness of the nation. So, when he speaks, the world listens. This is dharma. Dharma is the law of sustainability. When any threat or challenge does not upset you, rather you turn threats and challenges into opportunities. India has made out of this opportunity. And what is the opportunity you are saying? If you see, there is a major massive economic reset which is happening in the world, and India is sitting on the cusp of its economic resurgence, which you and I will one day wake up from sleep and you will find India is an economic superpower. You will not even get to know. Why? Because there will be a monetary reset. We are on our way to become that. Yeah. We are already. But how is it happening? It is happening because you have a leadership at this point of time. He is the man of the hour who has to lead this nation. He is a person who is not gullible, who takes all situations into consideration. So, he is leading the nation. This is this self anchoredness. This is dharma. This is the lesson. This is the lesson here for the world. Don't just capitulate. Compare your nation now to Pakistan. It is not that India also did not have similar situation. India also had a similar situation in 1991, when we went begging to IMF and we had to introduce structural reforms in our economy, as a result of which you had all these economic liberalization and globalization. But at this point of time, when a country like America says to you, open up the agriculture sector or we will do this, we will impose 100% tariffs. Look at how you are responding. All this comes from dharmic power. And here is a learning for the rest of the nation, that if you do not have
a self-interest, petty self-interest, individual interest, and you're thinking for the nation, you're working for the nation, the world may throw brickbats at you. But you know what you are doing is the right thing to do. In the given circumstances, nobody can turn you away from your path, and you will succeed, and India is succeeding. इतनी जल्दी 15 साल में कहाँ आप यस सर करते थे चाइना को भी. I remember in the 80s, one prime minister going and meeting Deng Xiaoping and trying to curry his favor, another going to America कि माई बाप हम पे कृपा कर दो. What happened? It's not your economic resources which define you. It is the strength of your character, the strength of your consciousness. India had the same resources at that time as it has now. But with those resources, we are manufacturing a new nation, creating a new nation. The strength lies here. And that comes from Dharma. When we self-anchor ourselves, we find that our consciousness, we find ourselves at our maximum potential. If we look at Bharat through its dharmic moral lens, it naturally leads to the question so often debated. Can Bharat truly become a Vishwaguru again? There is no denying that. That is the destiny of India, because that is the plan of the divine. The world has to move from the age of falsehood to the age of truth. That is the destiny for which India was prepared. There was a yuga cycle, a wave like Fletcher's waves. In the case of India, in the case of nations, particularly Indian civilization, the wave is in terms of thousands of years. So we were in the trough. Now we are on the ascendant. It will take time. It's not that it will happen overnight, but when it will happen overnight. This is something like what Ashtavakra said to Janak. Yes, sir. I don't want to elaborate. Should I elaborate? Please continue. Janak wanted to know, can the spiritual realization, does it happen in the fraction of a second, the moment one climbs a horse and gets astride a horse? He had read about it, that it happens in a jiffy, and he wanted to know from people. Then Ashtavakra explained to him, of course there is a long story to it, I will come just to the main crux of the story. He explained to him one thing, that when change happens, it is slow, tedious in time, but when it happens actually, then it happens, it seems like it has happened suddenly. It's like, I don't know, you don't have, I think, a rural experience. I belong to a village, and we used to also have poultry at our place in my native village in Kashmir. So when this hen would sit on the eggs for them to hatch, so for 21 days nothing happens to the egg, you think nothing is happening. Suddenly one fine morning the shell breaks and there's a new life. There's a new life which comes out. So this sudden change, change seems sudden, but it is not sudden. There is a process which is, so change will happen, but it is happening, smoldering, you could say. Suddenly the Agni will rise and will transform into Surya. Some call it a destiny, others call it a dream, but perhaps it is both. The idea of Vishwaguru Bharat is often misunderstood.
Some see it as arrogance, while others view it as a destiny. How do you define this idea in contemporary terms, sir? You see, it would have been arrogance if India were to tread the path that the colonial countries did. The colonial countries were led by self-interest. The whole gamut, the whole paradigm of development, economic development, as Alfred Marshall would put it, that of the market economy, is driven by enlightened self-interest. The finger of God is the self-interest. India does not see it like that. For India, this is an opportunity. When we talk of becoming powerful, we talk not just about ourselves, we talk of partnership, collaboration. We do not talk of competition, conflict, subjugation, domination, because India understands. Ek Noor, in Gurbani it is said, you will have to stop here, so because I am forgetting the lines. Look, out of the one is born the multiplicity in English. So, these are multiple formations, they are formed out of one. The one is the quintessence, because India has this kind of a vision. Whatever it will develop, when it will develop, it will not seek to dominate, it will seek to share, elevate. Share the vision, share first the vision and then the wealth, the prosperity. भाई हमारे यहाँ देवियाँ जो हैं, सरस्वती पहले है, फिर लक्ष्मी है, सरस्वती ये बहनें हैं, दुश्मन नहीं है. So, it is not arrogance, it is something inevitable, because it is the divine who is expressed himself in this world. Beautifully said, sir. भारत की ये डेस्टिनी भी है. Beautifully said, sir. भारत की ये डेस्टिनी हो या एरोगेंस, एरोगेंस तो खैर होगी नहीं, but even if it's a destiny, we share. If Bharat is to truly become a Vishwaguru, what must change? Not just in policy, but in the mindset of its people, especially its youth. The consciousness. I will again and again hammer only one thing. Consciousness. Consciousness, because as I told you right in the beginning, I referred to that, those two experiments in quantum mechanics. Whatever happens in this world, you create the world which you think of. Your world depends on your consciousness. Even not just this, even in the Bible, in the book of Genesis, there is a line, God said, let there be light, and there was light. Even Gandhiji also says, be the change you want to see. Be the change that you want to see in the world. Yes. So, change has to begin from you, and within you it has to begin from your consciousness. How do you envision, how do you see the reality? Because that is what is going to structure of the world. And that is why in the Ved we have two words, Satyam and Ritam. Satyam is the truth of being, and Ritam is the truth of becoming. Becoming where change happens. What is old is not new. Everything keeps changing. And Ritam has to be in line with, in assonance, in alignment with Satyam. That is the Ritam. When Satyam and Ritam are established, the world becomes a beautiful place, and that is our vision of a Satyug. Do you think our educational institutions today are doing enough to instill pride, purpose and perspective rooted in Bharat's civilizational thought? I don't see it. That's very sad to say.
We are teaching functional skills, we are teaching domain knowledge, we are teaching everything except Our own culture. our own culture. We are not connecting our youth to the richness, to the depth of our intellectual culture, spiritual culture, from where we could draw sustenance and power. That is the sad part, and I have been in the education sector for over 40 years in public universities and in private universities, both places, both in public and private educational sector. I don't see it. Scroll. कंक्लूड करेंगे लास्ट क्वेश्चन लेके ना कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज का स्पेस भी कम रह रहा है अपने पास। Okay. लास्ट क्वेश्चन ले लो। So ये वाले जो questions आएंगे, these are going to be very straightforward questions. तो इनका you can just conclude in 2 One-liners. Yes sir. ठीक है, अब तो हो गया ना, बहुत सेशन डिस्कशन Yes हो sir. गया। ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर. Okay. नहीं कहाँ से था? हाँ wait नहीं थोड़ा सा scroll नीचे. Just let it. नीचे का पढ़ना है मुझे आगे का. Professor, your words remind us that leadership is not about dominance, it's about direction. And direction must come from depth, from a lens that sees beyond the obvious. As we close, I like to come back to the essence of the show, the lens. When we say through Bharat's lens, it's not just about how Bharat views the world, but how Bharat helps the world see itself better. When you look at the world through Bharat's spiritual and when you look at the world through Bharat's spiritual and civilizational lens, what do you think the world needs to learn from India more urgently today? What does the world need to learn from Bharat today? If you were to give one message to India's youth who wish to serve their nation, not just economically, but morally and globally, what would it be? The world definitely needs to learn from India, and let me tell you, the world is already learning from India, only Indians are not learning from India. The world is already learning. I have been to Europe, I have stayed there, my son is in Europe, and I have seen that the world is already immersed in it. They are talking about it, the intellectuals are learning it. They are talking about all this interpretation that is happening in the world as of now. It is coming from those centers. So we can say that the Western intellects, they are learning from India, but the so-called intellects of our country, The Western intelligentsia, the They're Western not. educational centers of educational learning, centers of learning, they are focusing on this learning. But my lament is that here in Bharat, where there should be such centers of learning, where are they? I don't see them. If they are in hiding, they are hidden from view, they are not so prominent. They are in mathas. I don't want them to be in mathas. They should come out into the open, into the secular space, to use a terminology taken from the West. आप मुझे ऐसे देखोगे तो फिर मैं और बोलूँगा, फिर आप कहोगे लंबा हो गया आंसर। So I thought you were saying more. नहीं मैं Okay. अब I'm restricting myself. Oh. And finally, Professor, if through Bharat's lens is about how we see the world, how do you define Bharat's lens in one line? How do you define Bharat's lens? ये lines repeat हो गई यहाँ पे. ये वाला वापस बोलना है? ठीक है. And finally, Professor, if through Bharat's lens is about how we see the world, how do you define Bharat's lens in one line? Bharat's lens is dharmic.
Dharma is the greatest contribution of India to the world. But unfortunately, even this word has been semantically mutilated, and dharma has been brought to the level of religion. There can be many religions, but underlying all those religions are certain universal principles of sustainability. That is dharma, and that is what India always espoused and highlighted. But unfortunately, we in India also have fallen into this trap. We have turned dharma into religion. Teleprompter. Should I? यहाँ स्क्रीन पे सर हैं तो Thank you, Professor. Thank you, Professor, for reminding us that Bharat's true strength lies. हाँ ठीक है. Thank you, Professor. Thank you, Professor, for reminding us that Bharat's true strength lies not in what it conquers, but in what it awakens within itself and within the world. This was the Worldview through Bharat's lens. I'm Vanya. Until next time, keep your vision sharp, your roots deep, and your lens truly Bharatiya.